Heavenly Father, we surrender and we submit this whole meeting into thy almighty hands. Heavenly Father, here we are, your children, in thy footstool. Whatever you want to share, here we are, Dad. Put it in our heart so we will be able to display your thoughts here on this earth that's under your ownership. Heavenly Father, as you know, our nature, we are very much fragile. We are very weak vessels. We don't know what is going to happen next. But we know only one thing. We have such an awesome Heavenly Father like you. Dad, help us. And whatever you want to convey to your beloved children, use me to convey it. Empower them, Dad. Encourage them, Dad. And use them in thy vineyard. Holy God, keep us, Holy God, under the anointing. Under the anointing. I'm giving each and every student into the Almighty. Nurture them with thy word. Fill them with thy spirit. Impregnate and rub them with thy anointing there. And use them in thy vineyard. Here we are, Lord. Prepare us. Thank you for being with us. Thank you for using us. Thank you for opening our understanding. Here we are. And all these people and all the servants of God and whoever behind this, they are just giving the Almighty hand. Keep their family, keep their ministry, keep their all inside, outside work. Thank you. We're completely depending upon you. Use us. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Thank you. Lord, thank you for using Brother Anil also to do a right translation according to your will. Thank you, Papa. Thank you. In Jesus' name. Praise the Lord. Dear students, brothers and sisters, people of God, are you all fine? Glory to God. People of God, greetings in the name of Jesus Christ. प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिनंदन है। We are hearing, we are listening, and we are watching the teaching of gospel of the kingdom of God. हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं प्रियो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को। What a great opportunity that God has given us. परमेश्वर ने कितना अच्छा अवसर और सौभाग्य हमारे जीवन में दिया है। My name is Shaji Joseph. I am here merely to help you. और मेरा नाम शाजी जोसेफ है और मैं यहाँ पर आपकी केवल मदद करने के लिए हूँ। But there is a greater helper along with you. His name is Holy Spirit. और उससे भी बढ़कर हमारा एक मददगार है प्रियो और उसका नाम है पवित्र आत्मा। We together are helping you. I am a helper. He is also a helper to nurture you in the curriculum of the Holy Spirit, in the curriculum of the kingdom of God. और प्रियो मैं और पवित्र आत्मा हम दोनों एक सहायक हैं आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के स्वभाव में बढ़ाने के लिए। I am giving voice for the thoughts of the Holy Spirit in the physical realm, but at the same time, Holy Spirit is working in the spiritual realm and He is opening your mind and giving you the right understanding. और प्रियो जैसा कि मैं अपने शब्दों के द्वारा आपको यहाँ पर शिक्षा दूंगा सीखने के लिए और ठीक उसी समय पर पवित्र आत्मा भी आपकी समझ खोलेगा इसे समझने के लिए। Hallelujah. So at the same time, you need to align with the Holy Spirit and ask from the deepest part of the heart, Heavenly Father, help me to understand whatever you want to share with me.
और इसीलिए प्रियो हम पवित्र आत्मा के साथ एक मन हो जाना है और अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर पिता, आप जो कुछ मुझे आज सिखाना चाहते हैं, आज मुझे सीखने में मदद कीजिए। Because whatever you are going to learn, that's all pushing you in the realm of the spirit. क्योंकि जो कुछ हम अभी सीखेंगे प्रियो, वो हमको आत्मिक संसार में आगे जाने के लिए मदद करेगा। It is a journey through the unseen world. और ये एक अनदिखे संसार या जो संसार जो दिखाई नहीं देता उसकी यात्रा है प्रियो। We may be able to see and we may be able to grasp the knowledge of the seen world, but here it is not the seen world, it is the unseen world. और प्रियो, जो संसार हमें दिखाई देता है उसको हम देखकर और सुनकर आसानी से सीख जाते हैं। जो दिखाई नहीं देता है वो अदृश्य संसार। That's why the word of God says we are not looking the things which are seen, but the things which are unseen. इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, हम उन चीजों को नहीं देखते जो दिखाई देती है, पर हम अनदेखी चीजों को हम देखना चाहते हैं। And turn to 2 Corinthians chapter 4, और verse 18. और दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसके 18 वचन में हम जाएंगे। Shall we read that? At the same time, let me try to share the screen for you. और दूसरा कुरिन्थी 4 का 18 में यूं लिखा है प्रियो, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। See, dear children of God, there is clearly mentioned like this: while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. और प्रियो, यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। The seen world we are very much familiar with. और ये जो देखा हुआ संसार है प्रियो, इससे हम भली भांति परिचित हैं। But the unseen world, our knowledge is very much limited. लेकिन अदृश्य संसार के लिए हमारा ज्ञान बहुत सीमित है प्रियो। In the unseen world, our knowledge is very much limited. So only the Holy Spirit will be able to give you and give us the right understanding about the unseen world. और अदृश्य संसार के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है प्रियो, इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है कि इस अदृश्य संसार के बारे में हम समझ सकें। The kingdom of God, what we learned in the last class, is completely unseen world. और पिछले क्लास में हमने जो सीखा था प्रियो, परमेश्वर के राज्य के बारे में, वह पूर्ण तरीके से एक अदृश्य संसार है। And let me remember what we learned yesterday, and we will continue the rest of the classes. और कल हमने क्या सीखा था प्रियो, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। So the kingdom of God is an unseen world. So we need to always align with the Holy Spirit. Otherwise, we could not able to grasp anything of the kingdom of God. और परमेश्वर का राज्य चूंकि छुपा हुआ संसार है प्रियो, इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा के साथ उसे समझने की कोशिश ना करें तो उस राज्य से कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। The title of our subject is the kingdom of God, and we found this kingdom of God or the gospel of the kingdom of God, that should be our rock foundation. और प्रियो, हम जो हमारे जो प्रचार का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार, और हमने देखा था कि उसका नींव है हम ये जो इसका हमारा चट्टान के रूप का एक नींव है ये। When we get this rock foundation, that foundation will give us the vision of Jesus Christ. और प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य रूपी
चट्टान का नींव हमारे हृदय में देते हैं, तब हमें यीशु मसीह का दिखाया हुआ दर्शन दिखाई देता है। The vision of Jesus Christ was the kingdom of God. That's why he asked us to seek first the kingdom of God. और यीशु मसीह का द्वारा दिया हुआ दर्शन परमेश्वर का राज्य है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। That is the real rock, the will of God. If you found anything on that, if you build anything on that, even though whatever the situation, it will stay as a strong rock or strong building, or a building which was founded on a great rock foundation. और ये परमेश्वर की इच्छा है प्रियो कि हमारे हृदय में एक चट्टान रूपी नींव का निर्माण करे, और अगर हमने अपने हृदय में इस चट्टान रूपी नींव को बनाया है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जिएंगे, और हमारे को कितने भी प्रकार का तूफान या विपरीत परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े, परंतु हम कभी भी नहीं विचलित होंगे। So yesterday we did learn what is kingdom of God. इसलिए हमने कल रात को सीखा था प्रियो कि परमेश्वर का राज्य क्या है। So instead of for learning that, what we done is we divided the kingdom of God, the phrase, into 3 words. और हमने जैसा कि पिछले क्लास में सीखा था कि परमेश्वर के राज्य का जो ये वाक्य है, इसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। King, dominion and God. राजा, अधिकार रखने वाला शासक और परमेश्वर। Then we got an understanding, it is the dominion of God, the king. That is kingdom of God. और हमने जाना था प्रियो कि ये परमेश्वर का राज्य है, जो कि एक राजा है, और यही परमेश्वर का राज्य है। And king means ruler, dominion means reign, God means the creator, the sovereign authority. और राजा का मतलब होता है शासन करने वाला, और डोमिनियन का मतलब होता है अधिकार रखने वाला, अपने नियंत्रण में रखने वाला, और परमेश्वर का अर्थ होता है रचनाकार और अधिकार रखने वाला परमेश्वर। And the next, what did we learn was what is the area or domain of this God's kingdom. और हमने देखा था प्रियो कि परमेश्वर के राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो एक पूरा जगत है, संसार है। And we understood it was the whole universe is in the authority or in the dominion of the kingdom of God. और हमने देखा था प्रियो कि ये संपूर्ण जगत परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में है, परमेश्वर के नियंत्रण क्षेत्र में आता है। And our earth is only a little speck in that whole universe. और हम जानते हैं प्रियो कि संपूर्ण जगत में और ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी केवल एक छोटा सा भाग है। And finally we close with a fabulous statement about the gospel of the kingdom of God. और हमने एक महत्वपूर्ण भाग के द्वारा पिछला क्लास समाप्त किया था कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार क्या है। In order to study what is gospel of the kingdom of God, we learn that God is looking for some management team to do a right management over earth. और हमने सीखा था प्रियो कि ये परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार क्या है, कि परमेश्वर इस पृथ्वी के संपत्ति का और पृथ्वी का प्रबंधन करने के लिए एक कुछ उपयोगी समूह को या टीम को चाहता है। So God decided to create a new species called man to manage his property earth. और हमने देखा था कि परमेश्वर ने एक नया जाति की अर्थात मनुष्य की रचना किया, जो परमेश्वर की संपत्ति की इस संसार में रक्षा करे। So finally we concluded like this: the employment opportunity of the kingdom of God over earth
He is the reason for man's creation. और हमने देखा था प्रियो, परमेश्वर के राज्य का जो इस धरती पर आने के लिए, इस धरती में कुछ लोगों को काम करने के लिए अवसर देना था, इसी कारण से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। Hallelujah. It may be a thundering and it may be a doubtful report that we ever heard in the whole life period. और हो सकता है प्रियो, अपने हम संपूर्ण जीवन में हम ये जो बात सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक हो या एक शंका करने वाला विषय हमारे लिए बन सकता है। When I heard this news from inside of me, from the Holy Spirit, it was a thundering news for me. And not only it was a thundering, it was a fabulous statement in my mind. और प्रियो, जब मुझको पवित्र आत्मा ने इस बात को प्रकट किया, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक खबर भी था और मुझे इसने बहुत ही आश्चर्य में डाल दिया। The reason behind why is wondered me. I heard from my teachers, God has created us to worship Him. और मेरे लिए ये जानने के बाद एकदम आश्चर्यजनक होना स्वाभाविक था, क्योंकि मेरे गुरुओं ने मुझे बस यही सिखाया था कि परमेश्वर ने केवल हमें उसकी आराधना के लिए रचा है। But when I looked into the Word of God, what I found is all the creation should worship God. There is no exemption. और मैंने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा, तो इस परमेश्वर के वचन को सीखने मिला कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपनी रचना के लिए बनाया है, अपनी सारी सृष्टि को परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया है। When we read Psalms 148, it's starting with the worship of God and all the creation, the sun, moon, and all the creation has to worship God. And when at the end there is mentioned, the man also should worship God. और हम भजन संहिता 148 में देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को उसकी आराधना के लिए बनाया, सूर्य को, चंद्रमा को और सारे सृष्टि को परमेश्वर ने उसकी आराधना के लिए बनाया। और उस भजन संहिता 148 के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपनी आराधना के लिए बनाया। So it means that all creation is bound to worship the Creator. और इसका मतलब हम देखते हैं प्रियो कि संपूर्ण सृष्टि मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए बनाए गए हैं। This should be our culture to worship God. और यही हमने अपनी संस्कृति के द्वारा सीखा है कि हमें परमेश्वर की आराधना करना है। But Bible specifically says for what purpose God has created man. लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का जो वचन है, स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किस कारण से की है। Let me read that word once again. This is very important, solid foundation for the humanity. Before God created man, God said, let us make man in our own image and in our own likeness, and let them have dominion over all the earth. और हम देखते हैं प्रियो कि उस महत्वपूर्ण वचन के भाग को, जिसमें परमेश्वर ने मानव की रचना करने से पहले खुद एक साथ इकट्ठा होकर कहा कि आओ हम एक मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, जिसके कारण वो जिसके बाद में इस पूरी धरती पर वो अधिकार रखे। So you should never forget this word. This is the will of God about the humanity. और इसलिए हम इस बात को कभी नहीं भूलना है प्रियो, क्योंकि यही है मानव जाति के लिए परमेश्वर की इच्छा। All the things in the Bible, everything is in the Bible, it's working together to fulfill Genesis chapter 1 verse 26. That's the will of God about the humanity. और प्रियो, ये जो पूरा पवित्र शास्त्र है वो इस बात पर जोर डालता है कि हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन के अनुसार मनुष्य जो है वो संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार रखने के लिए बनाया गया है, उस बात की ओर ये इशारा करती है।
So the whole Bible is working together in order to fulfill that will or the will of God. और इसलिए ये जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है वो उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए एक साथ काम करता है। Let me read that key word, Genesis chapter 1 verse 26. और आइए हम उस महत्वपूर्ण भाग को पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 26 वचन। And God said, let us make man in our own image and in our own likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. और हम उस वचन में देखते हैं प्रियो, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। In other words, let us make man and let them have dominion over all the earth. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रियो कि आओ हम मनुष्य को बनाएं जो इस सारी सृष्टि पर अधिकार रखे। Hallelujah. Praise the Lord. So, this particular word gives us a picture. Why did God create man? और प्रियो, ये जो मुख्य वचन है ये एक चित्र को प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों रचा है। Just think, why did God create man? और थोड़ा सा सोच के देखिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों रचा। Let us make man and let them have dominion over all the earth. और यहाँ लिखा है प्रियो कि आओ हम मनुष्य को बनाएं जो इस पूरे धरती पर अधिकार रखे। So why did God create man? तो हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों रचा। To take dominion, to take control, to do a good stewardship over earth. ताकि वो इस धरती के ऊपर में एक अच्छा अधिकार रखे और इसे अपने नियंत्रण में रख सके। That means that this is an employment opportunity. और इसका मतलब है, समझ सकते हैं प्रियो कि ये एक प्रकार का रोजगार या काम का अवसर था मनुष्य के लिए धरती पर। That's the reason we did say, or the Holy Spirit has given us the enlightenment, the employment opportunity of the kingdom of God over earth is the reason for man's creation. और यही पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देती है प्रियो कि इस धरती में परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए और इस धरती पर काम करने के लिए, अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया। So, brothers, along this statement, I am going to add another phrase. So it will give us a light about this present world. और प्रियो, इस वचन के भाग के साथ में मैं एक और भाग को जोड़ना चाहूंगा जिसके द्वारा हम इस वर्तमान संसार की परिस्थिति में हम कुछ बात को समझ पाएंगे। This phrase will give us our part in this present world. और ये जो वचन है वो हमारे भाग को, हमारी हमारे कार्यों को इस संसार में बता पाएगा। It means that the employment opportunity of the kingdom of God over earth is the reason for man's creation, and this present life is its interview. और प्रियो, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य की जो स्थापना होनी थी इस धरती पर, उसके लिए एक रोजगार का अवसर देना था, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया और अभी हमारे वर्तमान जीवन में इसका इंटरव्यू चल रहा है। Hallelujah. Praise the Lord. So, dear children of God, understand this. The employment opportunity of the kingdom of God over earth is the reason for our creation. और प्रियो, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए इस संसार में जो रोजगार की एक अवसर था, उसी के कारण मनुष्य की रचना हुई है और इसी कारण हम बनाए गए हैं।
And this present life, what we are living right now here on this earth, is its interview. और अभी वर्तमान में जो हम अपना जीवन जी रहे हैं प्रियो, वो उसी काम के लिए एक इंटरव्यू के समान है। If you will successfully finish and pass this exam, we are going to be the rulers of this earth. और प्रियो, यदि हम इस भाग को अच्छे से पढ़ सकें और इस इंटरव्यू को अच्छे से पास कर सकेंगे, तो हम लोग एक अधिकारी, पृथ्वी के अधिकारी के रूप में हम स्थापित हो सकेंगे। A deathless and endless ruler of the earth, at the same time we become the sons of God. और हम लोग इस संसार में मृत्यु विहीन और अंत विहीन शासक बनेंगे धरती के, और उसके साथ ही साथ परमेश्वर की संतान बनेंगे। This is the reason God has created us. और यही कारण है प्रियो कि परमेश्वर ने हमारी रचना की है। And now this season God is testing us. और इसी कारण आज परमेश्वर हमें परखते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं। God tests anyone before he trusts. और परमेश्वर किसी के ऊपर भी विश्वास करने से पहले उसे परखते हैं। God tests before he trusts. और परमेश्वर किसी पर विश्वास रखने से पहले भी उसे परखते हैं। Keep this is in your mind all the time. God will not trust us until he tests us. और ये बात हमेशा अपने मन में इसे समझिए प्रियो कि जब तक परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेते, हमें परखते नहीं, वो हमें विश्वास नहीं करते। In the test, God will give us little thing, but if we successfully pass that test, God will trust us to entrust greater things in our hand. और प्रियो, जब हमारी परमेश्वर परीक्षा लेते हैं तो वो हमारी परीक्षा में थोड़ी सी भाग को लेकर आते हैं, लेकिन अगर उस थोड़ी सी परीक्षा में भी हम पास हो जाते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा से हमें बहुत कुछ हमारे अधिकार में देने के लिए हमारे सामने लेकर आते हैं। Whenever you read the word of God, in many places you may watch like this. Yeah, you are faithful in little, so I am going to entrust you much thing. और आप परमेश्वर के वचन में कई जगह इस प्रकार पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि यदि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। In this period, the period of interview, our life between the birth and death, God will grant us only little thing. और प्रियो, जबकि हमारी इस संसार में हमारे परखा जा रहा है या हमारी इंटरव्यू हो रही है जन्म से मृत्यु के बीच में, तो हमारे बीच में प्रभु बहुत थोड़ा सा ही भाग रखते हैं। God will give us only little things. If we show ourselves that we are faithful or we are loyal to him, then God will entrust us with greater things. प्रियो, अगर इस जन्म और मृत्यु के बीच के थोड़े से समय पर प्रभु जो कुछ भी हमें देते हैं उसके लिए हम विश्वास योग्य हैं और नीति नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो प्रभु परमेश्वर हमें बहुत कुछ बनाने का अधिकारी बनाएगा। And let me prove and confirm this statement. The present life is an interview for the employment opportunity of the kingdom of God over here. So let us read few words to confirm that. और प्रियो, इस बात को सबूत के रूप में समझने के लिए कि हम इस संसार में परखे जा रहे हैं, हमारी परीक्षा की जा रही है, ताकि हम पास होकर परमेश्वर के राज्य की, उसका कार्य की भाग को पा सकें और बहुत बड़े एक अधिकारी को बन सकें। आइए कुछ वचनों के द्वारा इस बात का सबूत हम देखेंगे। Let us check couple of words which gave us an understanding that present life is an interview with smaller things. और प्रियो, अभी हम कुछ वचनों के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा वर्तमान जो जीवन है ये उस थोड़ी सी परीक्षा का भाग है आगे बहुत कुछ पाने के लिए। In the Gospel of Matthew chapter 25,
मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 25 अध्याय में आएंगे। There is a parable of the talents. और यहाँ पर दिया है प्रियो, तोड़ों का एक दृष्टांत दिया है। Let us read that particular word, Matthew chapter 25, verse 21 and 22. Here, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक। one master gave some talents to his servants. One he gave one, another he gave two. And let us read that particular word. और यहाँ पर हम तोड़ों के दृष्टांत को देखते हैं प्रियो, और हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 25 अध्याय उसके 20, 21, 22 में से हम देख सकते हैं। From 14 onwards shall we read. और 14 से पढ़ेंगे तो और अच्छा है। For it is as when a man going into another country called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his several ability. And और यहाँ पे लिखा है प्रियो, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब परदेश चला गया। this is showing, this is a parable. Parable means earthly story and heavenly meanings. और ये दृष्टांत है प्रियो, दृष्टांत का मतलब होता है पृथ्वी की कहानी है, लेकिन अर्थ स्वर्ग का है। Because unseen things, it is not easily digesting. The unseen kingdom of God, it is not easily digestible. So what Jesus was doing, he was giving the examples of the seen world in order to reveal the unseen world, the kingdom of God. और प्रियो, अदृश्य संसार की स्वर्गीय बातों को समझ हम नहीं पाते और पचा नहीं पाते, इसलिए परमेश्वर उसे समझाने के लिए दिखने वाले संसार के उदाहरणों को और दृष्टांत को हमारे सामने रखते हैं ताकि हम समझ सके और पचा सके। So he used a lot of parables in order to portray a heavenly thing. So understand that all these parables are revealing some spiritual truths. और प्रियो, इन दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर स्वर्गीय चित्रों को प्रकट करते हैं ताकि इसके द्वारा हम आत्मिक संसार के भेद और बातों को समझ सकें। In conclusion, earthly story with a heavenly meaning. और सारांश में हम समझे तो प्रियो, पृथ्वी की कहानी लेकिन अर्थ स्वर्ग का है। Here also, it is an earthly story, but it's giving us heavenly meaning. और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं प्रियो, धरती की कहानी है, परंतु इसका जो अर्थ है वो स्वर्गीय है। From verse 16 onwards, let me read. Straight away, he that received the 5 talents went and traded with them and made other 5 talents. In like manner, he also that received the 2 gained the other 2. Read, brother. और इसके 16 और 17 वचन में हम देखते हैं प्रियो, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। But he that received the 1 went away and digged in the earth and hid his Lord's money. Now after a long time, the Lord of those servants come and make a reckoning with them. और यहाँ लिखा है, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। Now after a long time, the Lord of those servants come and make a reckoning with them. What means that after a long time?
after the period of our interview, we all need to give accounts of our life. प्रियो, यहाँ पे लिखा है बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। तो यहाँ पर जो बहुत दिन लिखा है, इसका क्या मतलब है प्रियो? ये बहुत दिन का मतलब है हमारे जीवन का ये भाग जिसे हम जी रहे हैं, यही वो इंटरव्यू है जहां पर हमें लेखा देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। And he that received the 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou delivered unto me 5 talents. Lo, I have gained other 5 talents. और यहाँ हम 20 वचन में देखते हैं, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। Then the Lord replied, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will set thee over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। Listen, servants of God, listen the one case of the word. See, the particular phrase, thou hast been faithful over few things, I will set thee over many things. और परमेश्वर के प्रिय दासों और उसके सेवा करने वाले लोगों, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा है कि जब तू थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Open your understanding and hear what we are proving. The present life is an interview into the gospel of the kingdom of God. What is the gospel of the kingdom of God? Gospel of the kingdom of God. Gospel is a good news. Gospel of the kingdom of God means God created you and me to become the rulers of this earth. At the same time, और प्रियो, we have to be with God as his children. और प्रियो, हम अपने जीवन के इस इंटरव्यू में समझ सकते हैं, हमारे जीवन का इंटरव्यू हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार में हम परमेश्वर के एक सेवक के रूप में चुने जाएंगे। और परमेश्वर का जो सुसमाचार है प्रियो, वो इसे हम बोलते हैं गुड न्यूज, अर्थात ये शुभ संदेश है। इसका मतलब यही है प्रियो कि हम एक दिन परमेश्वर के संतान होने का अधिकार भी इसके द्वारा पाएंगे। The gospel of the kingdom, in the gospel of the kingdom of God, what we are getting is, we are entering to God's will. God wants to reign earth through man. और प्रियो, परमेश्वर के सुसमाचार का मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा को जानना या स्वीकार करना। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि मनुष्य इस धरती पर अधिकार रखे और अधिकारी बने। Pastor Anil clarify it in this way. God wants to reign earth through man. That is gospel of the kingdom of God. और इसे हम इस रीति से समझ सकते हैं प्रियो कि परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या है कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर इस धरती पर राज्य करना चाहता है या अधिकार रखना चाहता है। Just rephrase it. It's not because the meaning of the kingdom of God. The meaning of the gospel of the kingdom of God. Gospel means good news. That good news is for you and me. What is the meaning of the gospel of the kingdom of God? That's what we are talking now. Okay. और प्रियो, परमेश्वर के राज्य का हम जो यस सर, तो हम जो सुसमाचार जिसे हम समझ रहे हैं प्रियो, परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार का मतलब होता है शुभ संदेश। और शुभ संदेश ये है कि मनुष्य के द्वारा इस धरती पर परमेश्वर राज्य करना चाहता है। Oh, praise God. That's right. God wants to rule the kingdom of earth through man. Then God's kingdom
reign on earth through man. And God is seeking such people through an interview right now. और प्रियो हम इसी रीति से इसे समझ सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा परमेश्वर इस धरती पर राज्य करना चाहता है। यही सुसमाचार है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित हो सके। इसीलिए मनुष्य का वो इंटरव्यू ले रहा है, अर्थात परीक्षा ले रहा है। Hallelujah. So in that particular word, the Lord said, you are faithful in few things. So I am going to entrust you in great things. और इसलिए हम इस वचन के भाग में देख रहे हैं प्रियो कि यदि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। So in the present life, God has gifted you and me with the little things. What we need to do is, we should not hide it on the earth. Instead, we have to use it and multiply it and give him back according to the will of God. और इसीलिए प्रियो हमारे जीवन में जो कुछ भी उपहार और वरदान प्रभु ने दिया है वो छुपाने के लिए नहीं है, परंतु उस वरदान के द्वारा और तोड़े कमाने के लिए हैं, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा और भी चीजों के हम अधिकारी बन सके। Whatever we have, that's all God invested in our life. We need to multiply that. और जो कुछ भी प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है प्रियो, हमें उसे बढ़ाने की और उसका गुणा करने की, बढ़ाने की जरूरत है। This is the question of this interview. और यही अब जो मनुष्य का इंटरव्यू हो रहा है यही उसका सवाल है परमेश्वर का मनुष्य के लिए। And the next person, he came with he has received 2 talents and he came with his own report. Let me read that. और हम उसके दूसरे भाग में देखते हैं प्रियो कि एक व्यक्ति को 2 तोड़े दिए गए थे और उसने 2 तोड़े के द्वारा और 2 कमाए थे। उस भाग को भी हम देखेंगे। In verse 22. उसके 22 वचन में, and he also that received the 2 talents came and said, Lord, thou deliveredest unto me 2 talents. Lord, I have gained other 2 talents. और 22 वचन में हम देखते हैं प्रियो, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। There is mentioned the next word, verse 23. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. See, this is what God is looking for. We need to do things in a good and right manner. Then he will say, well done. So we are here to doing. Well done. Go ahead, brother. और इस 23 वचन में हम पढ़ते हैं प्रियो, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। तो हम यहाँ इस वचन को बार बार समझने की जरूरत है प्रियो कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। इसका मतलब हमारा इंटरव्यू हो रहा है, उसमें प्रभु हमसे यही कहना चाहता है हमारे कामों को देखकर, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा काम किया है। Yeah, we need to do our own part in order to succeed in this interview. और प्रियो हमें अपने कार्यों को अच्छे से करना है ताकि हम इस इंटरव्यू में पास हो सके। Here the master said, well done, good and faithful servants. और यहाँ पर स्वामी ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। So here, Lord is looking for good and at the same time faithful servants. He is not merely looking for servants, he is looking for faithful servants. और यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर क्या देख रहे हैं प्रियो, अच्छे और विश्वास योग्य दास को देख रहे हैं, और केवल दास नहीं परंतु विश्वास योग्य दास को देख रहे हैं। Dear workers of the word and dear ministers, there are many ministers
all around the world for the Christendom. But we have to be good and faithful ministers. प्रियो, परमेश्वर के वचन के सेवकों और परमेश्वर के दासों, हम लोग इस देखते हैं इस पूरे संसार में बहुत लोग मसीहत की सेवकाई करते हैं, परंतु परमेश्वर किन लोगों को ढूंढ रहे हैं? विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहे हैं। If we could not able to do that, all our work is in vain. और प्रियो, अगर हम यहाँ पर विश्वास योग्य नहीं ठहर पाए तो सब कुछ व्यर्थ में चला जाएगा। Here the Lord said, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. Remember, thou hast been faithful over few things. What is showing? This present life, God has entrusted you and me with few things. We have to be faithful with that. और प्रियो, हम इस वचन के आगे के भाग में देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं और स्वामी कहता है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। यहाँ पर ये शब्द उपयोग किया गया है, थोड़े में तू विश्वास योग्य रहा। इसका मतलब इस वर्तमान संसार में हमारे जीवन में प्रियो, परमेश्वर हमें केवल थोड़े से चीजों को देखकर हमारे विश्वास योग्यता को परख रहा है। The next part is the future part. He has said, thou hast been faithful over few things. That's the present part. The future part, I will set thee over many things. और वचन के इस भाग में हम देखते हैं प्रियो, इसमें से वचन का जो वर्तमान भाग है वो क्या है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, लेकिन इस वचन का भविष्यकाल का भाग है कि मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। That word divided into two parts. One is the present interview part, and another is our life. The another is our life in the kingdom of God. That's a deathless life. और प्रियो, इस वचन में दो भाग है। पहला भाग वर्तमान जीवन को दर्शाता है, जिसमें हम परखे जा रहे हैं कि थोड़े से में हम विश्वास योग्य हैं कि नहीं, और वचन के दूसरे भाग में जो है वो हमारे भविष्य के अनंत जीवन को दर्शाता है, परमेश्वर के राज्य में जो है जो मृत्युहीन है और अंतहीन है। The first part of that, our life here in this world, and the next part is that our life in the kingdom of God. और इस वचन के पहले भाग में जो वो वचन है उसका अर्थ है प्रियो हमारे वर्तमान जीवन से, और इस वचन के पीछे जो दूसरा भाग है वो हमारे जीवन को दर्शा रहा है जब हम परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। The first part is with death. The second part is a deathless part. और पहला जो भाग है प्रियो उसमें मृत्यु है, परंतु जो दूसरा भाग है वो मृत्युहीन है, अर्थात अमर और अविनाशी है। The first part is short and temporary. The second part is endless and eternal. और इसमें जो पहला भाग है प्रियो ये थोड़े दिन का है और केवल थोड़े से समय के लिए टेम्पररी है, परंतु जो दूसरा भाग है वो अंतहीन है और हमेशा के लिए है। Let me tell this once again because somebody asked me to repeat it. See, that particular word is shifting our life or splitting our life into two. The first part, the Master or the Lord or the Jesus is entrusted us with little things. And if we are faithful for that little thing, God will entrust us with greater things into the future world. That's the kingdom of God. और प्रियो, हम इस वचन को दो भाग में बांट के समझ सकते हैं। इस वचन के पहले भाग में जिसमें स्वामी हमें थोड़ी सी चीजों के द्वारा परख रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है प्रियो, जो हमारे जीवन को में थोड़ी सी चीजों को देखकर हमें परख रहा है।
और इस वचन के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक अनंत काल का राज्य है जो विश्वास योग्य लोगों को मिलेगा जो पहले में विश्वास योग्य रहेंगे। The first part is our interview. The second part is our real life. और इस वचन के पहले भाग में जिसमें थोड़ा सा विश्वास योग्य रहना है उस तोड़े को कमाने के लिए, वो हमारा इंटरव्यू का भाग है प्रियो। और इस वचन के दूसरे भाग में जो लिखा है मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा, वो परमेश्वर के राज्य का भाग है। The first part is just like our probationary period in a job. The second part is just like our permanent period in the job. जैसे किसी नौकरी में पहले का जो भाग होता है वो पर्यवेक्षक अवधि होती है जिसमें हम परखे जाते हैं, और उस नौकरी के पर्यवेक्षक अवधि के भाग के बाद में एक नियमित कर्मचारी के रूप में हम नौकरी को पा जाते हैं। वैसे ही ये वचन का दो भाग है। The first part between the birthday gate and the death day gate, but in the second part there is only one gate, that is the born again gate, and there is no death. It's a deathless period. और इस वचन के पहले भाग में प्रियो एक जन्म का द्वार है और मृत्यु का द्वार है, परंतु वचन के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि नए जन्म का द्वार तो जरूर है लेकिन उसके बाद कोई भी मृत्यु का द्वार नहीं है। There is only one beginning point, that is our born again point. और वहां पर एक ही शुरुआती भाग है, नए जन्म का भाग। And there is no limit, that's the endless and deathless kingdom of God. और उसके आगे में प्रियो एक मृत्युहीन और अंतहीन परमेश्वर का राज्य है। The first part is our interview here in this world in this present time. और पहला भाग प्रियो हमारे इंटरव्यू का है जब हम परखे जा रहे हैं वर्तमान समय में इस संसार में जब हम जी रहे हैं। The second part, we are entering into the kingdom of God for our real life, the deathless and eternal life. और दूसरे भाग में प्रियो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर हमारा जो जीवन है वो मृत्युहीन और अनंतकालीन होगा। So understand, this present life is our interview for our eternal kingdom of God, our eternal home, and our eternal job. और प्रियो ये जो हमारा वर्तमान जीवन है ये हमारे लिए एक इंटरव्यू के समान है, हमारे आगे अनंत जीवन को पाने के लिए और अनंत काल के राज्य में जाने के लिए और अनंत काल के घर को पाने के लिए और अनंत काल की नौकरी को पाने के लिए। So we should not be lazy. We must be zealous workers of the kingdom of God. At the same time, we must be faithful to our master, because master want to see us good and faithful servants. इसलिए प्रियो हम आलसी नहीं होना है परंतु परमेश्वर की सेवा को हम उत्साही होकर करना है, क्योंकि हमारा स्वामी हमें देख रहा है और वो चाहता है कि हम अच्छे और विश्वास योग्य बनकर उसकी सेवा So करें। we should not be slothful and lazy, but we must be diligent workers. और इसीलिए प्रियो हम स्वार्थी और आलसी नहीं होना है परंतु अपने कार्यों के लिए जागृत रहने वाले और उत्साहित रहने वाले व्यक्ति बनना है। And there is another person here. He was a slothful, a lazy man. He hid the talent of the master. He received the punishment. और यहाँ पर हम एक आलसी दास के बारे में देखते हैं प्रियो, जिसने वो तोड़ों को कमाया नहीं परंतु मिट्टी में जाके दबा दिया और वो परमेश्वर के लिए स्वामी के लिए विश्वास योग्य ना रहा। And from verse 24 onwards, his things is described. Let me read that. And he also that had received the one talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering where thou didst not scatter. And I was afraid, and I went away and hid thy talent in the earth. Lo, thou hast thine own. और यहाँ 24 और 25 वचन में हम देखते हैं प्रियो,
तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। But the Lord answered unto him, but the Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I did not scatter. Thou oughtest therefore to have put my money to the bankers, and at my coming I should have received back mine own with interest. Take ye, why therefore the talent from him, and give it unto him that hath the 10 talents. और 26 से 28 तक पढ़ते समय हम देखते हैं, प्रियो, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। It gives us various meanings and it diverts our message, but I want to focus on a particular thing. So let me shift into verse 30. There is mentioned what was the punishment received that guy. He said, Lord said like this, and cast ye out the unprofitable servant into the outer darkness. There shall be the weeping and gnashing of teeth. और इस वचन के बहुत सारे भाग हैं, प्रियो, और उस भागों पर हम सब भागों पर नहीं जाना चाहते, परंतु 30 वचन को देखकर हम इस बात को सीखेंगे। और परिणाम वहां इस प्रकार लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। Understand this, a person, he failed on his interview. प्रियो, यहाँ पर सोच सकते हैं कि हम अगर अपने इंटरव्यू में फेल हो गए तो उसका परिणाम क्या होगा। The first two person, they took their victory in the interview, but this person failed in the interview. और हमने देखा कि प्रियो, पहले के 2 व्यक्ति जिसने 5 तोड़े और 2 तोड़े कमाए थे, वो अपने इंटरव्यू में पास हो गए, परंतु ये जो तीसरा व्यक्ति है अपने इंटरव्यू में फेल हो गया। And this person received the punishment. और इस व्यक्ति को हम देखते हैं कि दंड मिला। And cast ye out the unprofitable servant into the outer darkness. There shall be the weeping and the gnashing of teeth. It means that this person has been pushed into the fire. प्रियो, यहाँ पे लिखा है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसका मतलब है, प्रियो, उसे धकेल दो उस अनंत आग में जहां वो चला जाए। See, two persons enter into the eternal life. The another one enter into the eternal death. और हम देखते हैं, प्रियो, कि पहले के 2 व्यक्ति जिन्होंने तोड़े कमाए थे वो अनंत जीवन पाने के लिए चला गया, लेकिन इस एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि अनंत आग में चला गया। Two persons entered into the eternal life, but the slothful, the lazy person, the unprofitable person entered into the eternal death. और हम देखते हैं, प्रियो, कि जो 2 व्यक्ति जो शुरू में थे, जो 2 दास लोग, उनका अंत ये हुआ कि वे अनंत काल के जीवन को पाने के लिए चले गए, परंतु इस निकम्मे दास और निकम्मे व्यक्ति का हम परिणाम ये देखते हैं कि अनंत आग में चला गया। Two persons took victory in their interview. One person failed in his interview. और हम देखते हैं, प्रियो, कि 2 व्यक्तियों ने जय पाया और सफल हो गए अपने इंटरव्यू में, लेकिन ये एक व्यक्ति अपने इंटरव्यू में असफल हो गया। So understand that in this life, God will entrust you and me little things, little talents, little money, little time. We need to use this
and to gain and fulfill the will of the master. और प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस जीवन में हमें थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धन और थोड़ा सा काम दिया है ताकि हम अपने स्वामी के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रह सके। In this parable, it's not clear what we are going to get. The master said, I will entrust you with greater things. But we don't know what was that greater thing. प्रियो हम इस वचन में देखते हैं कि स्वामी कहता है, हे मेरे विश्वास योग्य दास, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा, परंतु इस वचन के भाग में हम ये नहीं देख पाते हैं कि वो किन बहुतों के चीजों का अधिकारी बनाने वाले हैं। So we are going to look into another parable that will give us a more vivid, bright picture about this. और प्रियो हम और एक दृष्टांत को देखेंगे जिसके द्वारा हम इसके विस्तृत भाग को हम समझ पाएंगे। And don't forget, this scene, this present life is our interview with the little things. If we are faithful, God will entrust us. God will allow us to enter into the next phase with the greater things in our hand. और प्रियो हम इस बात को समझना है कि यह हमारा जो वर्तमान जीवन है, ये बहुत थोड़ा सा जीवन है जिसे परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीजों को देखकर हमारे विश्वास योग्यता को परख रहे हैं ताकि हम दूसरे भाग में जा सके जो कि परमेश्वर का राज्य है, जो अनंत काल का जीवन हमें देता है। And now we are going, in order to get a clear picture, what is this greater thing? We are going to look another parable in Luke chapter 19 from verse 11 onwards. और परमेश्वर हमें और क्या विस्तृत चीजों को देगा प्रियो, उस बात को समझने के लिए आइए हम और एक दृष्टांत के बारे में सीखेंगे जो हमको मिलता है लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 10 वचन से आगे। In Matthew chapter 25, the Lord said, you were faithful in little thing, so I am going to entrust you with greater thing. But we didn't get an idea what was that greater thing. In this parable, we will get the idea what is that greater thing. और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 25 अध्याय में हम देखते हैं प्रियो, वहां ये दृष्टांत लिखा हुआ है कि जब तू थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा, परंतु वहां हमें उसका स्पष्ट चित्र नहीं मिलता कि किन बहुत चीजों का प्रभु हमें अधिकारी बनाएगा। परंतु लूका की पुस्तक 19 अध्याय उसके 10 से आगे के दृष्टांत में हम स्पष्ट रीति से समझ सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर किन बातों का हमें अधिकारी बनाने वाले हैं। Here also the Lord is telling, you are faithful, so I am not going to entrust you in the greater things. Instead, he said, you are faithful, so according to your faithfulness, you have to go and rule 5 cities, 10 cities. Now the things are more clear here. What is this greater thing? और प्रियो इस लूका की पुस्तक 19 अध्याय उसके 10 से 11 से आगे के दृष्टांत में हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं कि यहाँ परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जो मैं तुझे बहुतों का जो अधिकारी बनाना चाहता हूँ वो क्या है। या तो वो 5 नगर हैं, या तो वो 10 नगर हैं, या उससे भी कहीं ज्यादा है। इस प्रकार का स्पष्ट जो चित्र है हम इस दृष्टांत में देख सकते हैं। We have to enter into our employment. We have to enter into our job over earth. The reign or the rulership of the earth we need to carry out. और प्रियो हम जब परमेश्वर के राज्य के उस काम को पूरा करेंगे, उस सुसमाचार के भाग में हमने देखा था कि वो हमें कार्य करने का एक अवसर देता है। उस भाग को हम पूरा करेंगे तब हम इन राज्यों के अधिकारी होने के भाग को भी प्राप्त कर पाएंगे। We have to enter into the reign over earth. We have to enter into the kingdom administrative service over earth. और प्रियो हम इस धरती पर अधिकारी होने के लिए आगे हम चुने जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में भी हम एक व्यवस्था करने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। So let me read from words 11 onwards.
इसलिए आइए हम 11 वचन से आगे पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक 19 अध्याय के। And as they heard these things, he added and spake a parable, because he was nigh to Jerusalem, and because they supposed that the kingdom of God was immediately to appear. और यहाँ 11 वचन में यूं लिखा है, प्रियो, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। See, in that time, almost everybody was looking for the kingdom of God, because the message of Jesus was the kingdom of God. और उस समय हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए लालायित रहता था प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश ही रहता था परमेश्वर का राज्य। And in order to prove the nature of the kingdom of God, so Jesus explained another parable unto them. और इसीलिए परमेश्वर के राज्य को के बारे में समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें फिर से एक नया दृष्टांत दिया। Why did we read the first word? It is a background for the rest. और हमने इस वचन के पहले भाग को इसलिए पढ़ा था प्रियो, क्योंकि वो बाद के भागों को समझने में एक आधार प्रदान करेगा। Because the people were expecting now the kingdom of God is going to appear. क्योंकि लोग वहां पे बहुत उत्साहित थे और आदर कर रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। And then Jesus narrated or explained how these things are going to happen in the kingdom of God through this parable. तब प्रभु ने अपनी दृष्टांत के द्वारा इस बात को प्रकट करना और उन्हें समझाना शुरू किया कि कैसे परमेश्वर का राज्य आएगा। Through an illustration or through a parable, he said like this. He said therefore, verse 12, he said therefore, yes, certain nobleman went into a far country to receive himself a kingdom and to return. And he called 10 servants of his and gave them 10 pounds and said unto them, trade herewith till I come. But his citizens hate him and sent ambassadors after him, saying, we will not that this man reign over us. Go ahead, brother. और पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस प्रकार दृष्टांत में समझाना शुरू किया। 12 वचन से आगे, अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। And let me read again. From verse 15, and it came to pass when he was come back again, having received the kingdom, and he commanded the servants unto whom he had given the money to be called to him, that he might know what they had gained by trading. And the first came before him, and saying the Lord, thy pound has made 10 pounds more. And he said unto him, well done. The same word, remember, well done, thou good servant, because thou wast found faithful. The 2 word is important. The 2 word, good and faithful. Thou wast found faithful in very little. Have thou authority over 10 cities. Go ahead. और प्रियो, हम आगे देखते हैं 15 से आगे, जब वह राज्य पद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी उन्हें अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास। जैसे हमने पिछले दृष्टांत में सुना था प्रियो, बार बार यहाँ परमेश्वर का वचन फिर से कहता है, धन्य और हे उत्तम दास। अच्छे
और विश्वास योग्य दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। This gives us a clear picture in Matthew chapter 25, the parable which we learned. There, the two phase, the interview phase and the inheriting phase. The interview phase, the master told, you were faithful in little, so I am going to entrust you with the greater things. But not revealed what was the greater things. Here it is revealed what was the greater things. We are going to enter in the kingdom administrative service. That means we are going to become the kings over earth. Once we successfully completed and we successfully finish with a mark, good and faithful servants. प्रियो, हमने मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक उसके 25 अध्याय के दृष्टांत में देखा कि पहले भाग में किस प्रकार स्वामी अपने दासों का इंटरव्यू ले रहे हैं और थोड़ी सी बातों में उन्हें विश्वास योग्य रहने के लिए कहते हैं ताकि वे दूसरे भाग में वो विरासत के अधिकारी बने और वारिस बने। और लेकिन वहां पर हम ये नहीं देखते कि किन चीजों का वे उन्हें अधिकारी बनाएंगे, परंतु हम यहाँ पर वचन के इस भाग में देखते हैं कि प्रभु ने कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, मैं तुझे इस धरती पर इस राज्य में इतने नगरों का अधिकारी होने के लिए मैं तुझे यानी अधिकार दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं प्रियो, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हे अच्छे और उत्तम दास का मतलब है कि वो इंटरव्यू में वो पास हो गया है और वो से वो जरूर वो 10 नगरों का अधिकारी बनाएगा। Is it clear, ministers of the word? What we are going to handle in the future? That is our employment. And this present life is its interview. और प्रियो परमेश्वर के वचन के सेवकों, क्या आप इस बात को समझ पाए कि आगे आने वाले दिनों में हम किन चीजों को संभालने वाले हैं? इस दृष्टांत और वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं। And now to the second person. This is the same thing is here also. The master is telling the same thing, but the only difference is that the first person gained 10 talent out of the 1 talent master gave him in the period of interview. But in this person, instead of 10 talents, he gained 5 talents out of the 1 talent the master has gave. That's what we are going to read. और इसके आगे के जब दृष्टांत को हम अध्ययन करेंगे तो वहां एक देखते हैं प्रियो कि यहाँ पर जो मुहरें दी गई थी उससे पहले भाग में देखा कि पहले दास ने 10 मुहरें कमाई थी और हम उसके दूसरे भाग में देखते हैं कि उसी दास ने उन 10 मुहरों से 5 मुहरें कमाई थी। And here his eternal position is going to be differ from the eternal position of the first person. और हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो अनंत काल का जो एक जो राजपद मिलेगा या स्थान मिलेगा वो पहले व्यक्ति के लिए और इस व्यक्ति के लिए अलग अलग है। What is showing is our present work, the result or the fruit of our present work determine the level of the future. प्रियो, हमारे वर्तमान में जितने कार्य कर रहे हैं हम, उसका फल ही हमारे भविष्य में हम क्या होने वाले हैं उसको निर्धारित करता है। So shall we read the another passage? और आगे हम आगे के भाग को पढ़ें। Verse 18. And the second came, saying, Thy pound, Lord, has made 5 pounds. And he said that, okay. और 18 वचन में हम देखते हैं प्रियो, दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई हैं। And the master replied, and he said unto him also, Be thou also over not 10 cities, but 5 cities. और उसने उससे कहा, और पहले के समान जैसे कहा था 10 नगरों पर वैसे नहीं, परंतु इस दूसरे दास से कहा, तू भी 5 नगरों पर अधिकारी या हाकिम हो जा। What it shows, according to our work or according to our interview or the result of the interview, our
eternal level will varies. और हम इस वचन के द्वारा इस बात को देखते हैं प्रियो कि हमारे काम के द्वारा, हमारे इंटरव्यू के द्वारा और हमारे परिणाम में जो अंतर है उसी के द्वारा भविष्य में हमारे अधिकारों में अलग अलग अंतर आएगा। So now this is the time we need to decide how many cities we need to reign. Pastor Anil, how many cities you need? Hey, Suraj, how many cities you need? My pastor Siji, how many cities you need? This is the time we need to decide the levels of our future. और प्रियो इसी हमें इस प्रकार इच्छा हमारे मन में लाने की जरूरत है कि जैसे पास्टर अनिल है, क्या वो 5 नगरों के अधिकारी होना चाहते हैं? भाई सूरज, क्या आप 5 नगरों के अधिकारी होना चाहते हैं? और पास्टर सीजी, क्या आप अपने भविष्य में 10 नगरों के अधिकारी होना चाहते हैं? ऐसा हमें एक इच्छा अपने हृदय में लाने की जरूरत है। All of us need to be past, or all of us need to be an overcomer in this present age. That is our interview. और प्रियो, हमारे वर्तमान समय में जो कुछ भी हम परीक्षा दे रहे हैं उस इंटरव्यू में हमें जय पाने की और पास होने की जरूरत है। That's why Jesus keep on telling those they overcome, they will inherit these things. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा है प्रियो कि जो जय पाएगा वही इन वस्तुओं का वारिस बनेगा। Let me turn to Revelation chapter 3, verse 21. इसलिए He हम लोग was, निकाले। ओके सर। Jesus was telling this to his church, the church of Laodicea. और यहाँ हम देखते हैं प्रियो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 21 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया को क्या कहा? He that overcomes, see, very important, he that overcomes, I will give him to sit down with me in my throne, as I also overcame and sat down with my Father in his throne. और उसके 21 वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। What a great lesson. Jesus is our role model. He is our example. और हम लोग देखते हैं प्रियो, हमारे लिए कितना अद्भुत उदाहरण है हमारा यीशु मसीह जो इस सिंहासन पे आगे जाके बैठ चुके हैं। See, in Jesus' message, he concluded with a particular word, overcomer. और प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द का यहाँ पर उपयोग किया है सारी चीजों को समाहित करने के लिए कि जो जय पाएगा उसे मिलेगा। If God has created you and me merely to worship him, so what we need to overcome? There is nothing we need to overcome. Just clap our hands and praise, glory, 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 glory. That's all. But Jesus of the Bible is giving another picture, a vivid and bright picture. We need to overcome. और प्रियो, अगर हमको केवल आराधना ही करना होता तो हम लोग और परमेश्वर ने हमको केवल स्तुति करने के लिए बुलाया होता तो हम केवल ताली बजा के केवल महिमा 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 करते रहते। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमें दिखा रहे हैं कि हमें कुछ अलग करना है और इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हें जय पाना है। All the creation, they should worship God. That should be their culture. और हम देखते हैं प्रियो कि सारी सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करो, ये प्रभु कहते हैं, ये उनकी संस्कृति है, परमेश्वर उन्होंने ऐसा बनाया है। But this is another thing. The purpose of humanity here on this planet is heaven's employment opportunity over earth, and our present life is its interview. We need to successfully overcome that interview in order to receive our endless, deathless, eternal life in the kingdom of God. परंतु हम देखते हैं प्रियो कि मानव की रचना परमेश्वर ने
इस धरती पर कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए किया है, ताकि इसके द्वारा मनुष्य जो है अपने इंटरव्यू को पूरा करे और परमेश्वर के राज्य में जो अंतहीन है और मृत्युहीन है उस राज्य का अधिकारी बने। That's why Jesus keep on telling to every church, be an overcomer. इसलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह हर कलीसिया को यही बात कहते हैं कि जय पाने वाले बनो। But what is the sad news around the Christendom? The most of the people's message, what was reflected in the mouth of Jesus Christ, the word overcomer is not appearing in the most of the sermons of today's Christendom. लेकिन आज की मसीहत में हम बड़े दुख का एक बात देखते हैं प्रियो कि हर जगह के हम सुसमाचार प्रचार में हम लोगों को जय पाने वाले समाचार के बारे में हम नहीं सुनते हैं। Only the joining part is there, but overcoming part is not there. Hallelujah. Praise Jesus. So here Jesus mentioned to his church, if you are an overcomer, you are going to sit with me in my throne, just like I became an overcomer and sat with my Father's throne. और यहाँ हम वचन में देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को संदेश दिया कि जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। So dear ministers of the word, whenever we minister, we must follow the steps of Jesus Christ. इसलिए परमेश्वर के वचन के सेवकों, जब भी हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों का अनुसरण करें। We must use this two part. One is allow people to accept Jesus Christ as their Lord and Savior and to follow his steps, and finally let them be an overcomer. We need two messages, not only to become a born again and help them and encourage them be an overcomer and enter into the next phase of life that is in the kingdom of God. इसलिए प्रियो, हम किसी भी व्यक्ति को प्रभु में आने और उद्धार पाने और नया जन्म पाने का ही संदेश नहीं देना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें जय पाकर परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनने का संदेश भी सिखाना है, अर्थात उन्हें मसीह में नया जन्म पाना भी सिखाना है और जय पाना भी सिखाना है। Hallelujah. So if you do these two things, that your evangelization is complete. We can call that evangelization is a full gospel evangelization. और प्रियो, अगर ये दो भाग को हम पूरा करते हैं, जिसके पहले भाग में हम नए जन्म के लिए यीशु मसीह में लोगों को नए जन्म के लिए तैयार करते हैं और दूसरे भाग में हम परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनाने के लिए उन्हें जय पाना सिखाते हैं, तब हम एक पूर्ण रूप से सुसमाचारक कहलाएंगे, जो पूर्ण सुसमाचार प्रचारक बनते हैं। Otherwise, what happened? There's many people, they enrolled in the 5 years MBBS course, and most of them, they stopped or they dropped or they failed in between. They didn't overcome and become a doctor. What's the use? There is no use. All our works become in vain. और हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं प्रियो कि अगर कोई एमबीबीएस की पढ़ाई करे, 5 साल की करना चाहे और वो उस पढ़ाई को या तो अधूरा छोड़ दे या फिर उसे पढ़ना रुक जाए या तो वो फेल हो जाए, तो उसका कोई भी पढ़ाई का रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। So we need to encourage people not only to join into the born again family and help them and encourage them and give them life to overcome and become God's child, God's son, and be with God forever and take care of his part on earth. और प्रियो, इसलिए हम न केवल लोगों को नए जन्म के बारे में बस सिखाना है, परंतु उन्हें हम प्रकाश देना है कि वे नए जन्म के साथ साथ जय पाना भी सीख सकें, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में स्थिर रह सकें
और इस संसार में रहते रहते परमेश्वर के राज्य को फैला सके और उसके अधिकार को आगे बढ़ा सके। What I meant is, or what I meaning is, or what I am trying to say is, there is a born again part and there is an inheritance part. We used to say the born again part. That's very good. We need to say. But don't forget to say the inheriting parts. We need to say the inheriting part also. प्रियो, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोगों को केवल नया जन्म मसीह में पाने के नया जन्म के बारे में नहीं बताना है, परंतु जय पाकर वारिस बनने के बारे में बताना है। तब हम किसी को पूरी शिक्षा दे पाएंगे। Dear ministers of God, it's good to be born again. Without born again, no one will enter into the kingdom of God. But not only to enter, we need to inherit the kingdom of God. That is, only the overcomers can inherit the kingdom of God. तो परमेश्वर के सेवकों, हम केवल इस बात को नहीं सिखाना कि केवल नया जन्म पाना है। नया जन्म अवश्य हमें पाना है, क्योंकि नया जन्म को पाए बगैर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु इसके साथ साथ हमें जय पाना भी सिखाना है, क्योंकि बिना जय पाए हम परमेश्वर के राज्य के वारिस भी नहीं बन सकते। It's like this. When we just clear this, when we become born again, we enter into the kingdom of God. We didn't inherit the kingdom of God. We entered freely by the works of Jesus on the cross of Calvary. Now we are appearing in the interview conducted by Jesus Christ, and now we need to be an overcomer to inherit the kingdom of God, where we are living right now by faith. One is born again and there is inheritance. प्रभु, हम प्रियो, हम परमेश्वर के शिक्षा के द्वारा सीख सकते हैं कि जब हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं तो हम केवल परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का ही काम करते हैं, परंतु उसके अधिकारी नहीं बनते। परंतु इसके साथ साथ हमें ये केवल हमारा समझिए, ये हमें मुफ्त में मिला है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का जो अनुग्रह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर कीमत चुका दी है, इसलिए हम मुफ्त में इसमें प्रवेश कर जाते हैं। परंतु इसके बाद हमें विश्वास योग्य रहने की जरूरत है, ताकि हम जय पाकर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन सके। I will read your word, then it will be clear to you. Revelation chapter 21, verse 7. आइए हम लोग इसे प्रवचन से पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए समझने में बड़ा और आसान हो जाए। There is saying that the Bible is concluding, is wrapping up now. That is the end chapter. He that overcome shall inherit. See, the word came here, overcome again. He that overcomes shall inherit these things. Then the inheriting part is for the overcomers. Go ahead. और प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य की इन अंतिम अध्यायों में हम परमेश्वर की योजना के सारांश को देख सकते हैं, और इस वचन में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। तो हम यहाँ पर हम एक शब्द को फिर से देखते हैं, जो जय पाए, अर्थात वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। तो वारिस होने के लिए प्रियो हमें जय पाना पड़ेगा। Hallelujah. So the born again is needed. That is a must thing. Through the born again, we enter into the kingdom of God. Now we will be able to see the things of the kingdom of God. But if you won't walk according to the kingdom character, or if you won't develop the kingdom character and become an overcomer, we will not inherit the kingdom of God. Jesus will spew us out of his mouth. Then we became a loser. God never won. We became a loser. We must inherit the kingdom of God. प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ जब हम नया जन्म को पाते हैं तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं और केवल परमेश्वर के राज्य को देख पाते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के राज्य के हिसाब से ना चलें या परमेश्वर के राज्य की शिक्षा को पाके उसका अनुसरण ना करें,
तो हम जय को प्राप्त नहीं करेंगे। और जैसा प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं उसे मुंह से बाहर निकाल दूंगा, उगल दूंगा, वैसे ही की स्थिति उनके साथ हो जाएगी जो जय नहीं पाएंगे। So here in this word, he that overcomes shall inherit these things, and I will be his God, and he shall be my son. और यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, वचन में लिखा है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। Understand, this present life is an interview to our eternal life. और ये समझिए प्रियो कि वर्तमान जो समय है, ये हमारा जीवन, ये हमारा इंटरव्यू या परखने का समय है, ताकि हम बाद के अनंत जीवन को परमेश्वर के राज्य में पा सके। And once we overcome, we inherit the kingdom of God. That's a sign we are called the sons of God. And afterwards, we have to do the administration service of the kingdom of God over this earth. और प्रियो, जब हम जय पाएंगे तब इन वस्तुओं के वारिस बनेंगे और परमेश्वर के संतान होने का हमें अधिकार मिलेगा। तब हम परमेश्वर के राज्य की सेवकाई को इस धरती पर कर पाएंगे। And let me read another passage also from the book of Revelation. Here, Lord is talking to the church of Thyatira in Revelation chapter 2 verse 18. There we read, God is encouraging them and God is giving them warning also. You should overcome. If you overcome, I will entrust you the authorities of this world. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रियो, ये एक और वचन के द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 18 वचन में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थुआतीरा की कलीसिया को कहते हैं कि जब तुम जय पाओगे तब मैं तुम्हें बहुत सारी चीजों को अधिकारी बनने के लिए दूंगा। In Revelation chapter 2 verse 26, let me read that. और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का उसका हम 26 वचन पढ़ेंगे। And he that overcomes, see the same word come again, overcome. So use that word in our evangelization. He that overcomes and he that keeps my works unto the end, to him will I give authority over nations. और यहाँ हम देखते हैं प्रियो, जो जय पाए, तो बार बार हम इस शब्द को देख रहे हैं प्रियो, जो जय पाए, इसलिए हम अपने सुसमाचार प्रचार में इस शब्द का उपयोग बार बार करना है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। So dear children of God, listen here, listen. People of God, listen. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुनिए, इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, सुनिए। Then what is your next work? आपका दूसरा काम, अगला काम क्या होगा? He's very clearly portrayed here. You are going to take authority over nations. और यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि तुम जाति जाति के अधिकारी होगे। It's not jadi, it's nations. I don't know whether in Hindi it is jadi means like a Hindu jadi or Muslim jadi. Actually, it is nations like India, Pakistan, USA, USSR, Australia, Canada. That's nations. We are going to take authority over nations. और प्रियो, हम यहाँ वचन में देखते हैं, लिखा है कि जो जय पाएगा मैं उसे राष्ट्रों का अधिकारी बनाऊंगा। Hallelujah. So how many rastro or nations you need? You have to think it in your mind. The word of God saying that he that overcomes and he that keeps my works unto the end, to him will I give authority over nations. और इसलिए प्रियो, You हम are अपने going मन to में, become the rulers of this world. और प्रियो, हम अपने मन में विचार करें कि हम कौन से राष्ट्र के अधिकारी होना चाहते हैं। यहाँ लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे राष्ट्रों पर अधिकारी बनाऊंगा, अर्थात इस संसार का अधिकारी बनाएंगे। This is gospel of Jesus Christ. The world is not heard this gospel. So what you need to do is you have to be impregnated with this gospel and you have to go and shoot or spread this gospel into this world.
और यही यीशु मसीह का सुसमाचार है प्रियो, और इसी सुसमाचार को ग्रहण करके हम गर्भ धारण करना है और अपने हृदय में स्वीकार करके हम इसे संसार में जाकर पूरे पूरे जगत में हमें फैलाना है। Only in the past, in the evangelization, we portrayed Jesus and people became born again. But they never understood why did they born again. They born again to become the sons of God and take control or authority over the nations. और प्रियो, हम पिछले दिनों यही सिखाते रहे हैं कि लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, और लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके नया जन्म तो पा गए हैं, लेकिन नया जन्म के बाद उन्हें क्या करना है ये बातें हमने नहीं सिखाई है। अब उन्हें जाकर हम सिखाना है कि नया जन्म को पाने के बाद में आपको जय पाकर राष्ट्रों के अर्थात कई देशों के अधिकारी बनना है। And who is teaching here? और यहाँ पर ये वचन की शिक्षा कौन दे रहा है? Jesus was giving this teaching. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ही ये शिक्षा को दे रहे हैं प्रियो। Hallelujah. So accept his teaching and be zealous to become an overcomer and take care of or to handle the lordship of this earth, the lordship of nations in behalf of Jesus Christ or in behalf of our God. और प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें वही शिक्षा देना चाहते हैं कि हम इस संसार पर और इस कई देशों पर प्रभुता करने के लिए तैयार हो जाएं, और यही हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा वो इस धरती पर और राष्ट्रों पर प्रभुता करे। And he said again in verse 27, and he shall rule them with a rod of iron. और यहाँ पर 27 वचन में प्रभु ने फिर से कहा है कि वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। So dear servants of God, ministers of the word, what is your job? Your job is to rule the nations. और परमेश्वर के वचन के सेवकों और परमेश्वर के दासों, आपका काम क्या है? आपका काम यही है कि आप राष्ट्रों पर राज्य करें। This what Jesus or this was Father said in Genesis chapter 1 verse 26. Let us make a new species, man, and let them take care and let them have dominion over the earth. In other words, over the nations. और यही बात हम उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय के 26 में भी देखते हैं प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, ताकि वो इस संसार पर अर्थात कई देशों पर अधिकार रखे और अधिकारी बने। This is gospel of the kingdom. God wants to reign his property earth through human being, through you and me. Allow ourselves to become God's kingdom. और यही है परमेश्वर का राज्य प्रियो, कि आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर इस धरती पर राज्य करना चाहता है। इसलिए आपको और मुझको हम अनुमति दें कि हमारे द्वारा परमेश्वर इस धरती पर राज्य करे। Because of this, understand that the employment opportunity of the kingdom of God over earth is the reason for the creation of you and me, and this present life is its interview. और यही कारण है प्रियो कि इस संसार में परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए हमको काम करने का अवसर मिला हुआ है, उसके राज्य की स्थापना करने के लिए, और इसीलिए हमें ये वर्तमान जीवन मिला है कि हम इस वर्तमान जीवन में इंटरव्यू को पास करें। Here God is ruling his property earth through you and me. और यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर अपने धरती रूपी संपत्ति पर अधिकारी रखना चाहता है, या उसे कंट्रोल करना चाहता है आपके और मेरे द्वारा। So God and earth in between man. So this man has to be prepared. This man has to be cleansed. This man has to be redeemed from all filthiness in order to align with God's thought
and to reign over the earth. और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर और धरती के बीच में मनुष्य है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य के द्वारा धरती पर राज करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के पाप में स्वभाव को धोकर और उसे पवित्र करके अपने विचारों के करीब लाना चाहता है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर इस धरती पर राज्य करे। But we need to cooperate with God. लेकिन हमको क्या करना है प्रियो? हमको हमारे परमेश्वर के साथ सहमत हो जाना है, उनके साथ सहयोग करना है। We don't need to run behind this world. We don't need to run behind the lust of the flesh. We should run behind Jesus Christ, the author and finisher of our faith. He will cleanse us. He will redeem us. And He will make us to grow in the full stature of the Son of God. And He will present ourselves into God or into Himself. और प्रियो, हमको प्रभु ये नहीं चाहता कि हम संसार के पीछे और शरीर की अभिलाषाओं के पीछे जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करना चाहता है और वो हमें शुद्ध करना चाहता है, और वही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, जो हमें प्रभु के दिल डॉल में खड़ा करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके इस संसार पर उसके हमारे द्वारा वो राज्य कर सके। Allow ourselves in the hand of God. Let Him cleanse us. Let Him wash us. And let Him make use of us. इसलिए आइए प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें कि वो हमें स्वच्छ करे, वो हमें धोए और साफ करे, ताकि हम उसके हाथों में एक उपयोगी पात्र बन जाएं। My dear ministers of the word, did you receive what God wants in your life? If you receive, just raise your right hand. प्रिय परमेश्वर के वचन के सेवकों, क्या आज जो परमेश्वर ने आपको कहा है उस बात को आप स्वीकार करते हैं? और स्वीकार करते हैं तो अपना दाहिना हाथ उठा के बताएं। Praise the Lord, praise the Lord. See what a glorious position that God has given us. प्रियो, हम सोच के देखें कि कितना महिमामय स्थान परमेश्वर हमें देना चाहता है। So shall we surrender our life in His hand, and I'm going to pray for you all. तो आइए प्रियो, हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Right now, most of us are not in a position to become an overcomer. But if we surrender our life in the hand of God, and if you do not follow, and if you do not walk, or if you do not walk according to the lust of our flesh and according to the love of this world, He will help us and He will mold us and He will make use of us. प्रियो, हमें से बहुत लोग हैं जो अभी जय पाने की योग्यता में नहीं हैं, परंतु अगर हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर, इस संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के हाथ में आने को तैयार हैं, तो परमेश्वर हमें साफ करेगा, स्वच्छ करेगा और इस योग्य बनाएगा कि हम उसके उपयोगी पात्र बनकर इस संसार में उसके राज्य के कार्यों को पूरा कर सके। Let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। And now your heart be in connect with God. आइए अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ दें And give Him thanks for the truth which He has been shared to us. और आइए हम परमेश्वर को उस सत्य के लिए धन्यवाद करें जिसे प्रभु ने हमारे सामने प्रकट किया है। Lord, we thank you. We thank you for the awesome message which you shared into our heart. प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं उस प्रत्येक संदेश के लिए जो आपने हमारे हृदय में दिया है। Thank you for your interest which you showed to redeem us and cleanse us and make use of us. प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें छुटकारा दिया है, हमारा उद्धार किया है, ताकि हम आपके हाथ में एक उपयोगी पात्र बन जाएं। Heavenly Father, we are unworthy vessels, but still you did send your Son, Jesus Christ, to die for our sin and make us to become born again. प्रभु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं कि हम अनुपयोगी पात्र थे, लेकिन
लेकिन आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मर जाए और हमें योग्य बनाए। We thank you for that, and the rest of the life also. We commit in the Almighty hand. Help us to become an overcomer. और प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमें प्रियो इस योग्य बनाइए कि हम आगे आने वाले जीवन में हम जय पाने वाले बन सके। And at the same time, use us to help others to make them overcomers. और ठीक इसी समय पर प्रिय प्रभु जी, हमें सहायता कीजिए कि हम और भी लोगों को इस योग्य बना सकें कि वे भी जय पाएं। Here we are. Thank you, Lord. Thank you in Jesus' name. यहाँ पर हम हैं प्रभु जी, आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। I give all the glory to my Lord. We thank you. We thank you. We thank you. Lift your hands and thank God for the mighty and marvelous work He's doing in our life. आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। Praise the Lord. Dear children of God, I believe all of you received the word today and keep this word, nurture it. I mean, meditate this word. Whenever you are meditating this word, you are watering it. So it will start to grow little by little. And once you become a strong tree, you will start to bear fruit, and in the fruit there will be a lot of seeds, and in the seeds there is a lot of trees concealed that became your fruit, and in thereby let your fruit be multiplied. और प्रियो, आपने जितना जो शिक्षा सुना है उसको आप मनन करें, और जब आप इसे मनन करेंगे तो ये उस पौधे के समान होगा जिस पे हम पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद वो पौधा बड़ा होगा, उसमें पत्ती और फल आएगा, और उस फल के अंदर में और बहुत सारे बीज होंगे जो बहुत सारे पेड़ों को जन्म देंगे। And let me say the benediction. आइए हम आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। The blessings of the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you to the end of the world. In Jesus' name. परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की आशीष हम सब के साथ इस जगत के अंत तक होती रहे। आमीन। God bless you. If God permit, very soon we will meet again with the continuation of this class. Till now, Shalom. God be with you. Bye bye. Praise the Lord. Are you happy? परमेश्वर का धन्यवाद, और परमेश्वर ने अनुमति दिया तो आने वाले क्लासेस में और हमको मिलेंगे। आप सब खुश हैं? सबको शालोम, शांति मिले।